the third thing was saying, चलो come to fourth. पैसे की बात करेंगे. Like we'll talk about monetization of art. Real thing. Let's say. तो so we are already on like 200K number. I want like to impact Indian lives and make sure that Hi everyone. This is जयपुर फाउंडर्स और आज मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाउंडर है जयपुर के, अंकुश नागपाल. आवाज स्टूडियो इनका स्टार्टअप है, इनका एक वेंचर है which is very very interesting, which is adding so many happy vibes to a lot of community, lot of creators. So Ankush, what's your story, man? I mean, what you are doing is very very interesting. What's your story? What inspired you to do what you are doing today? okay. So at the age of 18, I like after my school, I went to Bangalore for my undergraduation in Christ University, and I had a knack of writing poetry. Like in school also, I used to write poetry. In college, like Bangalore was a cultural shock for me. It was like a different city altogether from Jaipur. So it took me some time to adjust to the city's tempo, the city's thought process. And meanwhile, for those 6 months to 1 year, while I was adjusting to the city, I used to write a lot of poems. Like poetry became my, like home in that new city. So I used to write a lot of poems. I wrote almost like some days I wrote 40 to 50 poems a day. Like where did you live in Bangalore? Koramangala. Like, Wow. yeah. हाँ तो वहाँ तो फिर पोइट्री समझ गया. Yeah, I think Bangalore, like back then, was pretty poetic. I got it. Right now, it's I don't know. Yeah, but so the thing was, poetry became like a very natural excuse, and I used to like also read a lot at that time. After 1 year of writing poems, and like there were some online interesting forums where you could publish poetry, and you could also there were competitions, there was publishing platforms. All of these things used to happen. So I got very deep into the poetry scene, especially the online scene, and slowly in the Bangalore local poetry circuit. Slowly, when my like some of people that I met, my friends who were into the art scene, they told me that, yeah, Ankush, why don't you publish a book? And I'm like, that sounds interesting. Wow. Around poetry. Around poetry. Yeah. I'm like, ठीक है तो A book on the books. Yeah, so basically उनका पता है कि इतनी poem लिखी रहा है. तो उसके ऊपर एक और poem लिख दे, like poem of the poems. Exactly. So it's called a anthology. So I compiled an anthology of 35 poems. ठीक है, and I don't know मुझे क्या ऐसे शौक चढ़ा, मतलब ऐसे like क्यों मैंने अपने दोस्तों को विश्वास कर लिया कि भाई उन्होंने कभी बुक छाप देंगे क्या बुरी बात है, हो जाएगा. ठीक है. So I collected the poems. Then I sent like a draft to different publications of India, and then they told me कि यार like your poems are decent, but the thing is in this country poetry doesn't sell, right? Especially for young author. Yeah. So if you go to, like I don't know the scene right now, but 10 years back, if you went to any big publisher's website and they had a tab called submissions. If you click on submissions, वहाँ पे लिखा होता है साफ-साफ कि we don't accept poetry submissions. है ना? Like for pro submissions, email. For poetry submission, we don't accept. We don't accept it. And I'm like, भाई ऐसा भी क्या ही मतलब गुनाह है ये poetry लिखना है देश में. So then I started digging the scene more, and I got into this concept called self publishing. जब मैंने self publishing के बारे में पढ़ा और मैंने जाना उसके बारे में कि क्या होता है self publishing actually, I'm like ठीक है मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर. I would just go ahead and self publish my book. ठीक है, मैं self publish करूँगा. तो मैंने उसके लिए then मतलब मैंने copyright, ISBN ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ सीखा. ठीक है, एक प्रिंटर ढूंढा, पेपर ढूंढा, अपना पूरा खुद ने कवर डिज़ाइन किया. 2-3 महीने लगे मुझे काम करने में, एंड मैंने वो बुक पब्लिश होने के लिए एक प्रिंटर को दे दी. ठीक है, मैंने अपना पूरा मतलब जो भी उसका कॉपीराइट ये सब करना होता है, ये सब कर दिया. ठीक है. अब ये सब कर दिया, 500 बुक छप के मेरे रूम में आ गई. Within like a week, fortnight. हाँ, मतलब 15-20 दिन में. एंड भाई ये किताब तो आ गई, अब इसका आगे क्या करना है वो नहीं सोचा था मैंने. तो उस टाइम पे एक YouTube चैनल पे मैं देखता था बस्किंग करके एक चीज़ होती है. ठीक है, तो बस्किंग में लोग जैसे पार्क के अंदर म्यूजिक प्ले करते हैं, और ऐसे एक चीज़ होती है इम्प्रोव पोइट्री. इम्प्रोव पोइट्री होती है कि अगर आप जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी और से बात कर रहे होते तो मैं आप लोग को ऑब्जर्व करता और उस पर एक पोम राइट नाउ लिख के देता आपको एज अ गिफ्ट. ठीक है, क्या लाइक जैसे कुछ लोग स्केच करते हैं, इम्प्रोव स्केचिंग भी करते हैं कुछ लोग, तो मैं ऐसे में इम्प्रोव पोइट्री करता था. तो मैं ये थॉट था कि मैं जाऊँगा डिफरेंट आर्ट सेंटर्स में, कल्चरल पार्क्स के अंदर या फिर नॉर्मल कैफेज में कभी कभी, एंड जो लोग इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे, लाइक थोड़ा जजमेंटल भाई, कि जो लोग इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मैं उनसे बात करूँ कि आप क्या बात कर रहे हो मुझे बताओ. ठीक है, आई विल राइट अ पोम ऑन दैट. मैं आपको अभी लिख के दूंगा. इफ़ यू लाइक दैट पोम आप रख लो उसको, और आपको बहुत अच्छी लग गई तो आप मेरी किताब भी खरीद सकते हो जो 150 रुपये की है. ठीक, तो ये मेरा बेसिक फंडामेंटल मॉडल था ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग किया कैसे मैं इस बुक को बाहर निकालूँ.
तो इसको करते करते मैं अराउंड 2 साल के अंदर 2-2.5 साल में आई मेट अराउंड 8,000 पीपल, 8,000 लोगों से मिला मैं, जिसमें से 5 लोगों ने मेरी किताब खरीदी। 800 में से 500 में 8,000 में से हाँ, तो मैं 8,000 लोगों से मिला। तो और मुझे मतलब उस टाइम पे एक्चुअली इंडिया क्या है, और मीटिंग दिस 8,000 पीपल टुक हाउ लॉन्ग एंड व्हाट काइंड ऑफ 2.5 years एवरी, हर रोज आफ्टर कॉलेज यही करता था मैन। तो उस टाइम में मुझे समझ में आया कि देश एक्चुअली क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि पोइट्री पढ़ने वाले लोग नहीं है, मतलब बिकॉज दैट मिथ ब्रोक इन माय माइंड कि यार मैं लोगों से मिला हूँ, उन्होंने एक नए आर्टिस्ट किसी को जानते भी नहीं है उसकी बुक खरीदी है ना। बहुत सारे लोगों ने बोला कि बुक नहीं लेता मैं, बट मुझे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो मुझे समझ में आ गया कि यार पोइट्री सेल होती है। और जो लोगों ने मेरी बुक ली थी वो सभी क्रिएटिव लोग थे, ठीक है, दे वर ऑल इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिव फील्ड्स। तो अब कॉलेज के अंदर क्या था, कॉलेज के अंदर क्लब्स से अलग अलग, कि एक आर्ट का क्लब है, म्यूजिक का क्लब अलग है, थिएटर का अलग क्लब है। मुझे लगा क्या जब सब क्रिएटिव लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं तो एक क्रिएटिव क्लब क्यों नहीं ऑल टुगेदर, ठीक है, मतलब सब लोग एक बार कहीं नहीं मिलते, थिएटर में लगे रहते हैं और काम सब एक दूसरे के साथ ही करते हैं जब उनको प्रोफेशनली बढ़ना होता है। मैं इतना स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, है ना, मतलब लाइक हाउ मच व्हाटएवर यू नो डिग्रीज वी हैव और हाउ मच टैलेंटेड वी आर, सक्सेसफुल बनने के लिए वो सब जो आप में जो है ना क्वालिटीज, वो 1 out of 10 ही फैक्टर है उसका वेटेज, बिल्कुल राइट। तो जितने लोगों से आप मिलोगे, करोगे, सीखोगे ना, दैट वो तेरा रेशियो जो है ना सक्सेस का, वो 8 out of 10 तक पहुंचा देता है तेरा, बिकॉज तेरा अकेले अलग माइंड चल रहा है तेरा, राइट, यू नो थिंग्स, बिल्कुल। बट तो अभिषेक से मिलेगा, अनमोल से मिलेगा, मेरे से मिलेगा, या तेरे जो ऑब्वियसली आपके जो नेटवर्क वाले जो उनसे मिलोगे आप, 4 आइडिया उनसे आप सुनोगे क्या कर रहे हैं, इतना प्यारी चीज है। आपका सीपीयू अलग है सबका। तो आपने जो वैल्यू ऐड करी है ना, वो आपने उसको बेसिकली 10x कर दिया जो बंदे वो लोग कर रहे थे पहले से। हाँ, मतलब मेरे को ये था कि यार सब लोग को साथ में लाके देखते हैं क्या होता है, क्या पता कुछ चेंज ही हो जाए। तो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड आवाज स्टूडियो, कि कुछ ऐसा बनाते हैं जहाँ पे सब क्रिएटिव लोग एक साथ आए, पहली बात, और दूसरा पैसे की बात करेंगे, लाइक वी विल टॉक अबाउट मोनेटाइजेशन ऑफ रियल थिंग, लेट्स से। हाँ, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम जो आर्ट्स के अंदर या बोलते कि यार ये सब तो पैशन के लिए ठीक है, पैसा नहीं है, पैसे की बात करो सीधे। हाँ, तो नहीं, मतलब आई अंडरस्टैंड पैशन पार्ट की, पर पैसे की बात भी करो, पैसे की बात मस्ट है। हाँ, लोग ये सोचते हैं कि आर्ट में पैसा है नहीं, ठीक है, या क्रिएटिविटी में पैसा नहीं है, उसकी बहुत पैसा है, ठीक है। तो ये जो पूरा मतलब हमने बात करते हैं, वी विल ब्रिज द गैप, राइट। सो या दैट वाज द थॉट प्रोसेस। यस। और कितने लोग कनेक्टेड हैं आज आवाज से, अंकुश? मोर देन 200,000 पीपल। या रियली ऑल क्रिएटर्स, lot of creators, lot of enthusiasts, students who like you know वो जो बन रहे हैं, aspiring creators, हाँ, aspiring creators, yeah, aspiring in the creators, बिल्कुल, all creators, so wow, yeah, creators and creativity enthusiasts, अभी बोल सकते हो, yes। तो organize a music festival, man, we will, Indian music festival, yeah, techno music festival, techno whatever music, I mean, but for sure, organize, become that organizer of the music festival, for sure, we will do that। 2019 में हमने किया था एक म्यूजिक फेस्टिवल, बट दैट वाज मोर ऑन इंडी फोक, जहाँ पे अंकुर तिवारी, समझ में थी, वो द हेडलाइनर्स। अभी बट हाँ, टेक्नो भी हमने लाइक आई वर्क विद विडियन, बट या टेक्नो इज अ ग्रोइंग स्पेस, इंटरेस्टिंग ग्रोइंग स्पेस राइट नाउ इन द कंट्री। म्यूजिक फेस्टिवल तो यार देखो, यंग एज इन जन, यू नीड यंग पीपल हु आर हैप्पी ऑन लाइफ, हाई ऑन लाइफ, दे वांट टू कम एंड एंजॉय। तो उसका म्यूजिक, उनका म्यूजिक तो यही है। नहीं, आई फील लाइक if you look at market share wise, no, I don't think that. Techno is like EDM is definitely like a good market share, but vernacular content भी बहुत important है। बहुत लोग इनफैक्ट अभी इंडी पॉप है, बहुत लोग वो भी सुन रहे हैं। important नहीं, market share wise, if I ask you कि आज still Bollywood still tops the country। मैं wait, let's say 17 to 25 की एज रेंज का मैं पूछूं कि उनमें से इंडी पॉप कितने % लोग सुन रहे होंगे? Easily 70-80% लोग। 70 to 80%. Yeah, Pratik Kuar, Arnav Jain, King, all of these people are being listened to massively, not only in India, across the globe. Gen Z, 70% of Indian Gen Z is listening to indie pop. Yeah, for sure. And see, they're also listening to techno. I'm not saying they're not listening to techno. No, techno, how much %? Techno, I have like because I've not dealt in that domain, तो मुझे numbers नहीं पता। 70% is indie pop. Indie pop। बाकी techno कितना % होगा? Let's say पंजाबी या जो। Punjabi is again big. Punjabi is big in like 10% पंजाबी? No, more than that. 15? So basically, okay, I'll tell you how it the report comes out. So Bollywood is still the number one thing consumed in India. Then there's indie pop. Then उसके बाद जो थर्ड है वो है vernacular content. जैसे कि अगर राजस्थान में राजस्थानी गाने, बिहार में बिहारी गाने, कन्नड़ी का गाने, ठीक है, ये सब गाने, ये थर्ड नंबर पे है। टोटल मिला के vernacular content is third. In the range of 18 to 25?
No, I'm just talking about 18 to 25. 18-25 is a hard term. Like, मतलब ऐसा segmentation, I don't have the exact stats about that. Just give a but guess. Giving my experience and what I know around, Guess. like people, because I have so many 17-25s around me, I feel techno is somewhere around 30-35% for sure. 35% techno? 35, yeah. Okay. No, not like everybody, because techno is only 35% indie pop, let's say. indie pop is 70-80% easily. This crosses 100%, no man. No, okay. So if I'm not saying that. 18 to 25, talking about this, the young So people. it's not a zero-sum game. Like, I listen to techno and indie pop both. I can be both, right? So it's not a 100% thing that we are distributing in 3. Let's say whose first priority is techno? That's a very difficult thing to answer. I get it. But yeah, अंकुश सबसे डिफिकल्ट टाइम क्या रहा आपकी इस जर्नी में इन द आवाज स्टूडियो? और जस्ट अ सेकंड, आप मुझे स्टार्टिंग से बताओ, लाइक वेयर डिड यू कहाँ से पढ़ाई की, एजुकेशन किया? जयपुर में ही पढ़ा हुआ मैं. आई स्टडीड इन सीडलिंग मॉडल हाई स्कूल. उसके बाद मैं क्राइस्ट गया बैंगलोर. ओके. वहाँ पे मैंने आवाज स्टूडियो का आइडिया सोचा, वो बुक हुआ. मैं वापस आया, मैं जयपुर में स्टार्ट किया आवाज स्टूडियो, बिकॉज मुझे था कि जयपुर में बिल्कुल भी सीन नहीं है. आई वॉन्ट टू वर्क जहाँ पे बिल्कुल भी सीन नहीं है, मुझे वहाँ पे काम करना है. तो जब वहाँ पे काम किया तो आई थिंक मुझे फर्स्ट साल 1.5 साल था, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट. क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे लोगों को समझाना कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, बिकॉज उस टाइम पे ओपन माइक ये वो कुछ भी क्रिएटिविटी के नाम पे वॉज 0. तो 1.5 साल लगा हमें वो एक कम्युनिटी बनाने में. इनिशियल 500 पीपल हु लाइक बिलीव्ड इन यू, एंड देन वहाँ से फिर लाइक थिंग्स बिकेम ईजियर. तो आई फील लाइक ऑफ कोर्स 0 to जो छोटा सा 0 to 0.1 वाला स्टेज होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है. हाँ, या दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज. और फिर अभी मतलब व्हाट इज द हाई दैट, मतलब एवरी डे यू गो टू ऑफिस, क्या रूटीन क्या रहता है? लाइक व्हाट टाइम यू वेक अप, व्हाट टाइम यू गो टू ऑफिस, क्या करते हो ऑफिस जाके, किन लोगों से मिलते हो, कब, मतलब क्या रहता है डेली रूटीन? या बेसिकली लाइक और नथिंग फिक्स्ड, मतलब no, like it's pretty मतलब of course there is a structure. I'm a early riser. I wake up early. I read. I like to read a lot. So I read in like in office. I'm in office by 10:30. So I have two other businesses that I manage. Okay. So yeah, there's a lot of delegation stuff. Right. ये सब होता है. And majorly like the thing that happen in office is about how can we provide better value to the community. जो creative community है, उसके लिए हम और क्या better कर सकते हैं. Then there's some project that we undertake for that. तो उसके operations भी हैं, उसके सब कुछ जो होता ही है. So yeah, but the major काम जो हो रहा है वो यही कि better value कैसे provide कर सकते हैं creative community को. Yeah. So उसके बाद ऑफिस में यू मीट पीपल, कम होम. Yeah. हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड? No, like so basically it's mostly reading or traveling or of course events. Weekends are a lot about events. This is even today I have to attend 2 events. Tomorrow I have to attend 2 events. Yeah. You meet more people. Yeah, more people. On Of the course, weekends, of course. People meeting is like that's the main fun I derive out of this thing. How often do you party? Like, I mean, what is your party का definition? मतलब आप exactly. So, my party definition is very different. Even if I'm sitting with like yesterday I was with 5 of my close friends and like just having a pizza at a restaurant. That's a party for me. Right. This happens very very often. Right. Yeah, like that's thrice a week kind of a thing for us. Yeah. क्या प्लान, आगे क्या प्लान है आपके अंकुश? मतलब क्या, कितना आवाज को मतलब कहाँ देखते हो आप, कहाँ ले जाना चाहते हो, किस डायरेक्शन में? So basically I don't know like exactly scale मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, but impact में आंसर कर सकता हूँ. That I want to like impact at least like 10 million lives through this. So we are already on like 200K number. I want like to impact 10 million lives and make sure that their creative journey is smooth. Their creative journey has know-how of how to earn money, how to sustain, and they don't get lost just because they could not understand how the financial systemity of part of this works. And they are not mocked for their dreams. उनको ऐसे नहीं लगता कि भाई मतलब वो बोलते हैं किसी को कि मुझे क्रिएटर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, तो उनको मॉक नहीं किया जाता. उनको समझ में आता है कि एक जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं, वहाँ पे हमें एक्सेप्टेंस तो डिफरेंट पार्ट है, बट वी विल गेट द नेक्स्ट स्टेप्स कि ओके ये कैसे फाइन ट्यून करना है, उसको कैसे करियर में बनाना है. तो हाँ, मतलब आई वॉन्ट टू इम्पैक्ट 10 million lives. So that is the current mission. Yeah. Right. So अंकुश, हमने I mean when I was building Neo Stencil, exactly मतलब जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसको वो उसकी अर्निंग कैसे हो, उसकी अर्निंग होगी तो अपनी अर्निंग होगी. सही बात है. वो कैसे ग्रो हो, राइट? एंड आई थिंक यू आर एडिंग अ ग्रेट वैल्यू टू द क्रिएटर्स कि आप उसको ग्रो, उसके ग्रो पे ध्यान दे रहे हो. Yeah. Right. That's the main focus. That's the main focus. Yeah, मतलब क्या ग्रो करवा लो, मतलब यार बिल्कुल such an amazing initiative अंकुश, and thanks man. So happy when क्या मतलब फॉर क्रिएटर्स को आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, कम हैंग आउट, लर्न फ्रॉम ईच अदर, और साथ में कि यार चल तू आगे कैसे ग्रो कर सकता है, स्केल कर सकता है ब्रो, मैं साथ में हूँ आपके. हाँ, तो मतलब वही कि कम्युनिटी जब साथ में आती है ना तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. लाइक पीपल आर सो स्किल्ड
इन टुडेज टाइम वो अपने आप ही बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. Yeah, yeah. आप 4 लोग बैठोगे साथ में विद द इंटेंशन ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इट विल गेट इफ नॉट 100% सॉल्व 60% सॉल्व. तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा. सो भाई इनफॉर्मल लर्निंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें. सो अंकुश, आप मैं अगर कहूँगा कि मतलब यू आर वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड कूल फाउंडर एंड गाय हु इज एडिंग वैल्यू टू द इकोसिस्टम, राइट? एंड आई थिंक सच अ ब्यूटीफुल project initiative you have, Awaaz Studio. Thank you. More power to you, man. Thanks भाई. जो बाकी जो फाउंडर्स लेट्स से कि इसी इंडस्ट्री में कुछ और भी फाउंडर्स हैं आपकी तरह जो आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, राइट? और मे बी बिल्डिंग अ कम्युनिटी और मे बी आर क्रिएटर्स देमसेल्व्स हु आर क्रिएटर्स ऑफ सम, ऑल ऑफ देम आर फाउंडर्स, राइट? क्रिएटर इज अ फाउंडर, ही इज अ फाउंडर. बिल्कुल. वो जो फाउंडर्स जो है आपकी इंडस्ट्री में, उनको आप मतलब क्या बोलना चाहोगे कि यार हाँ ये 4-5 चीजें हैं जो मैंने हार्ड वे लर्न करी, राइट? बट लेट्स से कि आप ये चीजें you can avoid this thing or this is how you should go ahead on your mission. Yeah, I think firstly जो सबसे दो तीन चीजें हैं इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है. गेट गुड एट कम्युनिटी बिल्डिंग. आप चाहे ऑफलाइन करो, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू करो, ऑफलाइन इवेंट्स के थ्रू करो, कोई एक तरीका सही नहीं है. जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्पॉटिफाई या इंस्टाग्राम के थ्रू ही आपको रीच मिलेगी. ऑफलाइन भी मतलब एक शहर बहुत बड़ा होता है, जब में 90 लाख लोग रहते हैं. डोंट ओवरलुक दैट. अगर आपके लाइक हम जैसे बोलते हैं कि 90 लाख व्यूज आ गए, कोई लाइक इट्स अ डिसेंट नंबर, और अगर 90 लाख लोग आपके लिए एक जगह खड़े हो गए, इट्स अ ह्यूज थिंग. तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डोंट इग्नोर आइदर ऑफ देम. ऑफलाइन ऑनलाइन गॉट योर पॉइंट. कम्युनिटी, दैट्स वन. सेकेंडली, पीपल विल लाइक से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू. कुछ ना कुछ इग्नोर द नॉइज. हाँ, मतलब इग्नोर द नॉइज एंड जस्ट ट्राई टू बिकम सो ऑप्टिमिस्टिक यू कैन ओनली पिक द पॉजिटिव. अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो क्रिटिकली अगर भी बोल रहे हैं तो उसमें कुछ सेंस जो भी आपको बेनिफिट कर सकता है उतना ही टेक करो. डोंट टेक इट टू योर हार्ट, टेक इट टू योर माइंड. उतना ही है. एंड एक मेरा पॉडकास्ट हुआ था पहला, उसमें शुरू के पॉडकास्ट में आई हैड सम नेगेटिव रिव्यूज जो एक हुआ था अभिषेक. तो मैं सोचा यार ये क्या लोग कुछ गलत बोल रहे हैं, मतलब सम अच्छा खासा व्यूज कुछ बोल रहे हैं कुछ. तो उससे बात करी मैंने पॉडकास्ट कि यार व्हाट शिटी कमेंट्स करे, बोला यार कुछ इट्स फाइन. तो ऑफ कोर्स आई टुक इट ऑन हाइट, थोड़ा लिया उसको. अगले पॉडकास्ट में आई जस्ट डिडंट सी द कमेंट्स. बिल्कुल. आई जस्ट सॉ द लाइक्स. इतने लोगों ने लाइक किया है, कमेंट लाइक 5 लाख लोगों के हैं, डिसलाइक कमेंट्स जो है 50 लाख लोगों के हैं. हाँ, मतलब यार नेगेटिव को सुनने का नहीं ना, पॉजिटिव ढूंढ. और सी एग्जैक्टली एंड आई थिंक दैट्स फॉर एवरी फाउंडर कि यार ब्रो पॉजिटिव्स पे ध्यान दे, है ना? नेगेटिव तो इट्स अ हार्ड जर्नी ऑलरेडी, बहुत मुश्किल है पहले ही, है ना? और नेगेटिव पढ़ोगे तो और मुश्किल हो जाएगा. हां यार. एंड द थर्ड थिंग वाज सेइंग दैट लाइक ओके आई जस्ट वन मिनट. चलो कम टू फोर्थ. No, so it's just one second. Third thing is कि even if you're a creator or a unconventional person, don't take it as a hobby, take it like a profession. मतलब unless you yourself treat it as a profession, आपके दिमाग में अगर वो hobby तो hobby रहेगी, आपके दिमाग में profession तो profession बन जाएगा. Profession, yeah. It's a profession. It's a profession. तो बाकी लोग बोलते हैं कि अच्छा ये hobby के लिए कर रहे हो ये सब. आपने जितने अपने आपको कन्विंस कर लिया कि प्रोफेशन है मेरा फॉर श्योर, सच अ ब्यूटीफुल, उसमें वो प्रोफेशन बन जाएगा. तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे स्पेशली कॉलेज में जब आप होते हो या फिर यंग 22 वाले एज में, पीपल ट्राइंग टू कन्विंस यू. आप देखते हो कि कोई यहाँ पे जॉब कर रहा है या कोई स्टार्ट कर रहा है विच इज मोर कन्वेंशनल, तो आपको लगता है कि मेरी तो हॉबी की तरह ठीक है, ये मेन काम में कुछ और करना पड़ेगा. नहीं है, मैंने और कुछ नियर अराउंड में अपन देखते हैं बहुत लोगों को जो अच्छे क्रिएटर्स हैं बट दे आर स्टक विद द हॉबी पार्ट ऑफ इट. यार मजा, अरे इट्स अ प्रोफेशन ब्रो, देखो अर्न भी तो करना है, देखो कुछ आगे भी तो जाना है ना. मतलब सी अगर आपको हॉबी लगती है तो बहुत क्लियर रहो कि मुझे हॉबी लगती है, ये हॉबी है, फिर डोंट चेज प्रोफेशन. हां, फिर उसको प्रोफेशन हॉबी करता रहे, फिर हॉबी प्रोफेशन मिक्स मत करो, मिक्स मत कर. दोनों में से एक ही कर पाएगा. एग्जैक्टली. चेस खेल सकता हूं मैं फॉर हॉबी बट इट्स नॉट माय प्रोफेशन. थर्ड मतलब फॉरगेट हॉबी, चूज इट एज अ प्रोफेशन. अगर आपको बनना है बी क्लियर दैट्स इट, कि हॉबी है प्रोफेशन है, एंड देन उसको उस तरीके से ट्रीट करो, वैसे अप्रोच करो उसको. करेक्ट. So yeah, I think these are the 3 things which are important, which I also like took some time to understand. But once like that time had passed, I understood it, and उसके बाद things were better after that. Amazing, man. When is the next event, next shift happening? Shift. I came across Shift. I was reading about you and did some research on Awaaz. Shift, beautiful, man. What an event, yaar. Thanks, man. Thanks. Such a great event. I saw that. मतलब कितने सारे लोग हैं वहाँ पे और बिरला ऑडिटोरियम. It was such a happy vibe. Yeah. So Shift is basically our information lake towards the world कि arts creativity के अंदर पैसा है, and also
we don't preach, we tell them कि आओ देखो और सेलिब्रेट करो इस चीज को कि आपके शहर में इतने लोग अच्छे लोग हैं जो काम इतना अच्छा कर रहे हैं. So अभी तो शिफ्ट दिसंबर में होगा. We only do it once a year in Jaipur. Now we expand into other cities. अभी तक हम जयपुर में कर रहे थे. But now we have got some. But the Jaipur one will also keep happening. Yeah. Of course. Okay. Jaipur तो यार at the core of Awaaz and core of Shift. But it will keep expanding now as a festival. Awesome. So, but yeah, there's some other events and some other interesting things which are lined up. So yeah, which will keep you updated as and when things happen. Awesome. Yes. Such a pleasure meeting you, Ankush. Same, same. बहुत मजा आया यार, बहुत सीखने को मिला, मतलब seriously. Same. Always fun chatting with founders and thinkers. Yeah, of course man, मतलब किसी भी founder से मैं मिलता हूँ ना, तो एक अलग ही वाइब, मतलब एक अलग ही वो आता है कि हाँ, मतलब यार ये बंदा सब कुछ छोड़ के कुछ एक उसमें लगा हुआ है, बिल्ड करने में लगा हुआ है ना. There's some vision जिसको chase करना है. Vision जिसको chase कर रहा है. He has something to chase. बिल्कुल. Like with you also, like I love the nuisance of the idea because empowered so many people without even like changing anything about their life, because I think that's actual empowerment. Newstar Silva was a crazy journey, man. It was so much fun. Yeah. Very interesting. Thanks to like Abhishek for making us meet. Thank you, Abhishek. Thank you. Yeah. Hi everyone, I hope you like the video. अनमोल, आपको क्या अंकुश से इंटरेक्शन करके आपको क्या लगा, मतलब what are the great things about him? आपको कैसा लगा ओवरऑल? मेरे को अंकुश से का एपिसोड देख के मेरे को अच्छा लगा और मेरे को पता चला कि एक आर्टिस्ट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उनको कैसे ग्रो करने में उनको पता चलता है. तो इस बारे में को अंकुश से एपिसोड से पता चला. नहीं, सो आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था अंकुश के साथ. एंड जैसे अनमोल बोल रहे हैं, आई थिंक अंकुश की जो सबसे खास बात जो मुझे लगी, मतलब एज अ फाउंडर टू फाउंडर, की अंकुश इज नॉट चेजिंग मनी एंड ही इज चेजिंग इम्पैक्ट. वो उस प्रोसेस को, उस जर्नी को, कि क्रिएटर्स को, आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, सिनर्जीज को एक्सप्लोर करना एंड हेल्प ईच अदर ग्रो, वो उस इम्पैक्ट को चेज कर रहे हैं, राइट. सो आई थिंक अंकुश जब उस इम्पैक्ट को चेज कर रहे हैं तो एक अलग ही मतलब सक्सेस और द मनी बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट. So I think this is something which I have found very unique about Ankush. Thank you so much. Look forward and hope to see you again with our next Pink City founder. Thank you.